Assalamu alaikum students, welcome to the course Principle of Animal Life. In our previous lecture we have discussed about the Hardy-Weinberg principle, in which allelic frequency of a population, the population which are meeting some special conditions, special assumptions, then its allelic frequency remain constant after generation, mean that population is not evolving. But now in this lecture we will study some situation in which the Hardy-Weinberg assumptions are not met, and in which the situation in which the gene frequency change from one generation to the next and evolution occur. Now the question arises in our mind, okay, what's the mechanism behind that evolution? We know about the natural selection. Natural selection is the mechanism behind the evolution, but is it the only mechanism? No, I think it in fact sometime evolution just happened by chance. So from this lecture onward we will discuss the mechanism of evolution, and our first mechanism is genetic drift. Dear student, as you know that evolution is defined as a change in the frequency of allele in a population over time. Mean evolution is a way that shift in allele frequency in a population over generation. Whether that shift is due to the natural selection or some other evolutionary mechanism, and whether that shift make the population better suited for its environment or not, एवोल्यूशन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है. एवोल्यूशन अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो ये है कि इट्स अ शिफ्ट इन एलीलिक फ्रिक्वेंसी. वो एलीलिक फ्रिक्वेंसी के चेंज होने के बाद वो एलीलिक फ्रिक्वेंसी का चेंज होना सबब जो है वो नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है और कोई और एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म भी हो सकता है. इन द सेम वे उस शिफ्ट से जो प्रोडक्ट आ रही है, मे बी इट इज़ बेटर सुटेड फॉर इट्स एनवायरनमेंट और मे बी नॉट. सो सम टाइम a situation occur in which the evolution occur by random sampling. ठीक है. Basically genetic drift जो है, it produce the random change in allelic frequency in a population over time rather than selection. ठीक है. नेचुरल सिलेक्शन में ये होता है कि वो फिटेस्ट को पिक कर लेते हैं. ठीक है. while the difference between the natural selection and genetic difference is that कि genetic difference जो है वो क्या करती है, random change लेके आती है allele frequency में. We can say that change in allele frequency in a population from one generation to another that occur due to the chance event. chance event से जो allele frequency change हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, genetic drift कहते हैं. And one other way to define the genetic drift is a change due to the sampling error. Now what is the sampling error? An error in selecting the allele for the next generation from the gene pool of current generation. कि जो करंट जनरेशन के जीन पूल से जो इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहे हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, जो अलील सेलेक्ट हो रही हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, उसमें एरर आ जाए और उसमें बाई चांस एरर आ जाता है. ठीक है. Genetic drift can happen in any population, but its effect tend to be more stronger in smaller population. So population size matters a lot in when we talk about the genetic drift. जैसे जैसे population का size बड़ा होता जाएगा, genetic drift होने के chance कम होते जाएंगे, और जितनी population कम होगी they are tend to be adopt those effects stronger way में. उस genetic drift उन पे बहुत ज़्यादा affect करेगी in a smaller population. Let's make the idea of genetic drift more real by looking at example as shown in the diagram. We have a very small rabbit population that made up of 8 brown individual. Brown coat skin coat उनका है, brown color है उसका, और दो टाइप के उसमें जीनोटाइप उनकी दो तरह की हो सकती है, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी. सो जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोट कलर हैव 2 alleles, capital B and small b. Homozygous capital B are brown in color,
और हेट्रोजाइगस जो ब्राउन हैं दे आर द कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, यानी कैपिटल बी इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल बी, एंड टू वाइट इंडिविजुअल्स हुज जीनोटाइप इज स्मॉल बी स्मॉल बी. इनिशियली द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी की जो अलील्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल है, एज यू कैन सी 0.5 है, ठीक है. And this frequency can be calculated using the formula we learned in the previous lecture, that is the allele frequency is equal to the number of number of copies of concerned allele in a population divided by total number of all alleles for that gene in a population. ठीक है, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. Now what happened by chance? By chance only the 5 circled individual in a rabbit population reproduce. Maybe the other rabbits died for some reason unrelated to their coat color. कोड कलर की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई, बल्कि कुछ और हो सकता है. मे बी दे कॉट इन अ हंटर्स नेयर्स, और कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. बट ओनली 5 आर एबल टू रिप्रोड्यूस. इन सर्वाइविंग ग्रुप द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी allele is 0.7 and frequency of B allele 0.3. मतलब वो 50-50% से शिफ्ट हुआ है allele फ्रिक्वेंसी में, ठीक है. तो जो जिस पॉपुलेशन से वो बिलोंग करते थे वहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी 0.5 थी, बराबर थी. यहाँ पे अब जो है उनकी शिफ्ट हो गई है. फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन if only 2 of capital B offsprings, यानी ब्राउन कोटेड जो कोट कलर जो है रैबिट्स का, they survive by chance and reproduce to give the third generation. Now what happened in third generation? In this series of events we learned that by third generation the B allele is completely lost from the population. Here you can see in third generation there is no small B allele. Small b is equal to 0 and capital B is equal to 100%, equal to the 1. So मतलब एक अलील टोटली लॉस्ट होगी और दूसरी अलील फिक्सेशन पे चलेगी, 100% पे चलेगी, ठीक है. तो इस तरीके से दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि हाउ द जीन अलील फ्रिक्वेंसी जो है उसकी शिफ्ट आती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इफ़ द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल. ठीक है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल, दैट्स वाई दीज जो इफेक्ट्स हमें नज़र आए हैं जस्ट इन थर्ड जनरेशन जो है स्मॉल बी इज़ टोटली लॉस्ट. As in my previous slide I told you that the population size it's matter a lot. ठीक है, larger population are unlikely to change this quickly as a result of genetic drift. जितनी तेज़ी से इतने छोटे पॉपुलेशन, ये 10 रैबिट्स की पॉपुलेशन में ये इफेक्ट आया, इतनी तेज़ी से एक बड़ी पॉपुलेशन में नहीं आता. फॉर एग्जांपल इफ़ वी फॉलोड अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 रैबिट इंस्टेड ऑफ 10, it's much less likely that the capital small b allele would be lost. ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं कि स्मॉल बी जो है वो टोटली लॉस्ट हो जाए और कैपिटल बी जो है वो 100% पे पहुंच जाए और फिक्सेशन हो जाए. ठीक है, और आफ्टर सच अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट थर्ड जनरेशन में ये हुआ पिछले केस में. ठीक है, लेकिन अगर हम 1000 रैबिट्स की पॉपुलेशन को लेते हैं और अगर उसमें से 500 भी बाय चांस सर्वाइव कर जाएं, ठीक है, तो दीज सर्वाइविंग रैबिट्स यानी ओनली 500 इन सेकेंड जनरेशन वुड टेंड टू बी अ मच मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलील फ्रिक्वेंसी ऑफ द रीजनल पॉपुलेशन. इसमें तकरीबन वो अपनी 50% जो कैपिटल बी और स्मॉल बी की अलील की है वो उसको मेंटेन रखेंगे. ठीक है, और क्यों था? क्योंकि बिकॉज द सैम्पल वुड बी सो मच लार्ज. 500 इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है, उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिनमें स्मॉल बी है और कुछ में कैपिटल बी है, तो वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज जस्ट लाइक अ फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन. ठीक है, flipping of a coin in a small number of times and large number of times. If you flip a coin just a few times, you might easily get a head or tail ratio that is different from the 50-50%. ठीक है, बट अगर इसी कॉइन को आप 100 टाइम फ्लिप करें तो ऑन द अदर हैंड यू हैड बेटर गेट समथिंग क्वाइट क्लोजर टू द 50-50%.
ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी इसी तरह है, जितना पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा होगा उतना जो है वो अलील फ्रिक्वेंसीज के कांस्टेंट रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अभी हमने पहले भी बात की कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन आर द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, दोनों मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, अ लिटिल डिफरेंस. Genetic drift, unlike the natural selection, does not take into account an allele benefits to the individual that carry it. यहाँ पे adoptive value का ताल्लुक नहीं है इसके साथ, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट को नहीं इस बात से कंसर्न के जो इंडिविजुअल पिक हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनमें जो अलील्स हैं वो उनके लिए बेनिफिट्स के लिए बेनिफिशियल्स हैं या हार्मफुल हैं, ठीक है। मतलब इस केस में हो सकता है कि बेनिफिशियल अलील्स मे बी लॉस्ट एंड अ स्लाइटली हार्मफुल अलील मे बिकम फिक्स्ड, एंड इट्स बेसिकली आई वांट टू टेल यू दैट इट्स अ प्योरली बाय चांस इवेंट, ठीक है। बाय चांस जो है वो बेनिफिशियल अलील सेलेक्ट भी हो सकती है और लॉस भी हो सकती है, हार्मफुल अलील जो है वो लॉस भी हो सकती है और फिक्स्ड भी हो सकती है। वाइल द natural selection is quite different from genetic drift. Basically जो natural selection है, it caused the evolution on the basis of fitness. ये उन individuals को select करती है जिनमें alleles beneficial alleles होती हैं, ठीक है, वो अपने environment में fittest होते हैं, उनको select कर लेती है और बाकियों को जो है वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं होने देती। तो नेचुरल सिलेक्शन से जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो डिफरेंट है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट काज एवोल्यूशन बाय रैंडम चांस ड्यू टू द सैम्पलिंग एरर, ठीक है, वेयर द नेचुरल सिलेक्शन काज एवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस। Bottleneck effect. Bottleneck effect is the extreme example of genetic drift that happens when the size of the population is severely reduced. बहुत कम है पॉपुलेशन का, और ये काम कैसे हुआ है? लाइक सम नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर, ठीक है, दे सच इवेंट्स कैन डेसिमेट अ पॉपुलेशन, किलिंग मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड लिविंग बिहाइंड अ स्मॉल रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ सर्वाइवर्स। अब इन सर्वाइवर्स में जो अलील फ्रिक्वेंसी होगी मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पॉपुलेशन प्रायर टू द इवेंट। जो पहले थी इवेंट से पहले थी जेनेटिक वेरिएबिलिटी या जेनेटिक अलील की जो फ्रिक्वेंसी थी, अब इन सर्वाइवर में वो उससे डिफरेंट है, और सम टाइम अलील में बी मिसिंग एंटायरली ड्यूरिंग दिस हैपनिंग। ये जो जब इवेंट हो रहा होता है तो वो टोटल अलील्स गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब स्मॉलर द पॉपुलेशन, जितनी स्मॉलर होगी उसमें ये एक तो सबसे पहले ये है कि बॉटलनेक इफेक्ट होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी। अगेन जब ये मज़ीद थोड़ी रह जाएगी आफ्टर दिस बॉटलनेक इफेक्ट, this smaller population will also become susceptible to the effects of genetic drift after generation, causing even more allele to be lost. They are more moving toward the extinction की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि स्मॉलर पॉपुलेशन है, वो मज़ीद जब भी उस पर स्ट्रेस आएंगी तो उसमें वेरिएबिलिटी वैसे ही कम हो गई है, जो जेनेटिक जो है वो अलील फ्रिक्वेंसीज उसकी जो हैं कम हो गई हैं, तो अब दे आर द मोर ससेप्टिबल टू द इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. Here is the example of cheetah population in South and East Africa are endangered, and their depleted population have reduced genetic diversity to the point that even population size restored, they will have only a small of the original gene pool. ठीक है, hunting हुई या उनका habitat degrade हुआ, बहुत सारी रीज़न्स थी उसकी वजह से वो इंडेंजर्ड हो गए. इंडेंजर्ड होने के बाद इतना उनका पॉपुलेशन साइज़ कम हो गया कि उसमें उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बिल्कुल रिड्यूस होगी. नाउ द पॉपुलेशन हैज़ रिस्टोर्ड, उसको डिफरेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम से वापस रिस्टोर किया गया है, बट अब उनकी जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है दैट इज़ जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में थी, आज जो आफ्टर कंजर्वेशन जो उनकी नंबर इंक्रीज़ किया है उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी से बहुत डिफरेंट है. जो अब हमारे पास चीतास हैं उनकी बहुत रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी है एज़ कम्पेयर टू देयर ओरिजिनल पॉपुलेशन जो पहले मौजूद थी. So in a figure you can see that there are 25 different allele of a particular gene in a population.
ये ऊपर दिया गया है। फिर ये जो नैरो जो रीजन है बेसिकली इट्स अ बॉटल नेक इवेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल अपहीवल्स हुए हैं, उस पर हंटिंग हुई, हैबिटेट डिग्रेड हुआ, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुई। तो अब क्या हुआ कि आफ्टर दिस एनवायरमेंटल अपहीवल लिफ्ट, जब ये ख़त्म होता है तो व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड, पॉपुलेशन एक्सपेंड होती है। ये देखें दोबारा से नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो दोबारा से एक्सपेंड हो गया है। बट अब क्या है कि उस पर्टिकुलर जीन जिसकी 25 डिफरेंट अलील्स थी, अब जस्ट उसकी 4 अलील्स रह गई हैं। 21 अलील्स हैज़ लॉस्ट ड्यूरिंग दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट इवेंट। तो इस तरीके से जो बॉटलनेक इफेक्ट है वो रिड्यूस करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ पॉपुलेशन over the generation. One other example is the northern elephant seal, which has been hunted to near extinction in late 18th century for its blubers, and that was used basically to make the prized oil. Their population was reduced to about 100 individuals, just 100 individuals left रहे after this bottleneck effect like hunting. और इस स्पीशी में एक और भी है इफेक्ट कि यहाँ पे मेल कम्पीट फॉर द रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो चूँकि मेल कम्पीट करते हैं तो ओनली फ्यू मेल एक्चुअली पास देयर जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्या हुआ कि लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट सील वाज एक्टेड इन 1922 एंड नाउ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द 1 लाख इंडिविजुअल। अब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो चुका है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस रिलेटिव लार्ज नंबर जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन इज़ वेरी लो, ठीक है। और वन स्टडी शोज डेट नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी एट 24 प्रोटीन कोडिंग लॉस है, ठीक है। विद इन अ पॉपुलेशन जेनेटिक वेरिएशन ना होने के बराबर हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉटलनेक इफेक्ट जो है वो पॉपुलेशन में जो नई जनरेशन आती है उसमें अलील फ्रिक्वेंसी को टोटली चेंज कर देता है एज कम्पेयर टू देयर ओरिजिनल पॉपुलेशन। लेट्स मेक द आइडिया ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट मोर रियल बाय लुकिंग एट एग्जाम्पल एज शोन इन द डायग्राम। We have a very small rabbit population that made up of 8 brown individual, brown coat, skin coat उनका है, ब्राउन कलर है उसका, और दो टाइप के उसमें जीनोटाइप उनकी दो तरह की हो सकती है, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी भी। सो जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोट कलर हैव 2 alleles, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। होमोजाइगस कैपिटल बी आर ब्राउन इन कलर, और हेट्रोजाइगस जो ब्राउन हैं दे आर द कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, यानी कैपिटल बी इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल बी, एंड 2 वाइट इंडिविजुअल्स हुज जीनोटाइप इज स्मॉल बी। इनिशियली द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी की जो अलील्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल है, एज यू कैन सी 0.5 है, ठीक है। And this frequency can be calculated using the formula we learned in the previous lecture, that is the allele frequency is equal to the number of number of copies of concerned allele in a population divided by total number of all alleles for that gene in a population, ठीक है। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। Now what happened by chance only the 5 circled individual in a rabbit population reproduce. Maybe the other rabbits died for some reason unrelated to their coat color. कोड कलर की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई, बल्कि कुछ और हो सकता है, मे बी दे कॉट इन अ हंटर्स नेयर्स, और कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, बट ओनली 5 आर एबल टू रिप्रोड्यूस। इन सर्वाइविंग ग्रुप द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी allele is an often cited example of founder effect concern the genetic makeup of dunkers of eastern पेंसिल्वेनिया, ठीक है। ये डंकर पेंसिल्वेनिया ये जर्मनी में रहते थे, और सम ऑफ इंडिविजुअल जो है ना उस पॉपुलेशन से माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट में चले गए इन अर्ली 18th सेंचुरी, और फॉर देयर रिलीजियस रीज़न दे हैव नॉट मैरिड आउटसाइड देयर फैमिलीज, ठीक है।
तो अब जब उनकी एग्जामिनेशन की गई of certain traits like ABO blood group for example, तो in their population reveals very different gene frequency from the Dunker population of Germany. जर्मनी वाले जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसकी भी उन सर्टन ट्रेड्स की फ्रिक्वेंसीज को स्टडी किया गया, और ये जो यूनाइटेड स्टेट में माइग्रेट करके आ गए थे इनकी भी जेनेटिक फ्रिक्वेंसी को स्टडी किया गया. तो दिस न्यू कॉलोनी बेसिकली, जिसको हम फाउंडिंग पॉपुलेशन भी कहते हैं, इट शो द डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज देन द ओरिजिनल पॉपुलेशन. और these differences are attributed to the chance absence of certain genes in the individuals who founded the original पेंसिल्वेनिया डंकर पॉपुलेशन, जो वहाँ से निकल के आए थे. तो उसमें जो है वो बाय चांस जो है कुछ जीन्स जो हैं वो लॉस हो गई. I am summarizing the whole lecture. Every population experience the genetic drift, but smaller population feel its effect more strongly. ठीक है, we discussed that. जितनी population छोटी होगी उतना इसमें effect ज़्यादा होगा. और second important thing, genetic drift doesn't account with an allele adoptive value of population. Adoptive value के साथ genetic drift का कोई कंसर्न नहीं है. ये एक चांस इवेंट है. इस चांस इवेंट के नतीजे में हो भी सकता है कि बेनिफिशियल अलील लॉस कर जाए और एक हार्मफुल अलील जो है वो फिक्स कर जाए. ठीक है, तो ये एक चांस इवेंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट. थर्ड वन इज़ डैट के फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट आर केसेस इन विच द स्मॉल पॉपुलेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन एंड हुज these sampled population often do not represent the genetic diversity of the original population. उनकी जो allele frequencies हैं या gene frequencies हैं, they are different from their original population, from their originated जहाँ से वो link थे. And these sampled population less likely to withstand the environmental stress and more susceptible to extinction. मतलब जब भी उन पे ऐसी जो created populations हैं उन पे जब भी इफेक्ट होगा, कोई भी स्ट्रेस होगा, तो वो क्या होंगे, दे आर मोर ससेप्टिबल टू एक्सटिंक्शन. ठीक है, इन अदर वर्ड, हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मोर लाइकली टू हैव सम इंडिविजुअल्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ जीन दैट अलाउ देम टू विथस्टैंड द एनवायरमेंटल चेंजेस. कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी और उसमें उतनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी का होना ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो उसमें कोई ना कोई इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनमें ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होंगी जो कि उनको अलाउ कर देंगी, जो उनको हेल्प करेंगी टू विथस्टैंड द एनवायरमेंटल चेंजेस. ठीक है, तो पॉपुलेशन का लार्ज होना और उसमें हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है टू जो ताकि जो है वो जो अलील फ्रिक्वेंसी है वो चेंज ना हो. लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन थोड़ी होगी, छोटी हो जाएगी, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी, दे आर मोर ससेप्टिबल टू एक्सटिंक्शन, they are less likely to withstand the environmental stress. So this is the end of the genetic drift. Thank you.